A very good morning to one and all present here. My name is Kunika and I am the team admin of eTeam at NSFS. Here we passionately campaign the cause of advancing careers and fostering continuous learning in the dynamic field of forensic science. We aim to promote excellence in forensic science educations, research and practices. Our mission is to foster a community of forensic science professionals, students, and enthusiasts who shares their knowledge, ideas, and best practices to advance the field. Our goal is to create value, foster relationships, and inspire. We provide a platform that not only owns technical skills but also emphasizes critical soft skills essential for professional success. Now, join us on the exciting journey where your passion for forensic science meets limitless opportunities for professional development and personal growth. Now, I would like to introduce our members. NSFS is proudly registered under the Ministry of Micro, Smalls and Medium Enterprises, Government of India, a testament to our commitment to innovation, quality and excellence. About us. NSFS is an organization dedicated to promoting excellence in forensic science education, research and practice. Our mission is to foster a community of forensic science professionals, students, and enthusiasts who shares their knowledge, ideas, and best practices to advance the field. Our objectives are education and training, which provides the opportunities for students and professionals to develop their skills, knowledge in forensic science. Next, we have research and development, facilitates research, collaboration, knowledge sharing, and innovation in forensic science. Community building creates a platform for forensic science professionals, students, and enthusiasts to connect, share ideas, and learn from each other. We promote excellence, which recognize and promote excellence in forensic science practice, educations, and research. Our activities are guest lectures and workshops, organize guest lectures, workshops, and seminars on various topics in forensic science, conferences, and synopsia. We host the conferences and synopsia and webinars to bring together experts and stakeholders in forensic science. Students outreach, which we provide opportunities for students to engage with forensic science professionals, participate in research projects, and develop their skills. If you are passionate about forensic science and want to be a part of our community, then share your interest and join us. Let's advance the field of forensic science together. Meet our members. We have content team which creates thoughts, provoking articles, research papers, case studies, question banks and publication and resources. As a team admin, we have Ayushi Gupta and the members are Asra, Abhigyan, Shivam, Anshika Singh and Malaika Khan. Next we have event team. The event team which organizes the national conferences, workshops and seminars to facilitate knowledge and exchange professional developments. As a team admin, we have Kunika Jain. Members are Khushi, Sakshi and Paridhi. Next, we have graphic teams which designs visuals that make complex forensic science concepts accessible and engaging, from infographics to report. As a team admin, we have Sasank, and as a member, we have Ajay and Yashaswini. Next, we have social media team, which ensures forensic science reaches a global audience by managing impactful campaigns and digital outreach. As a team admin, we have Mridul, and as a member, we have Muhammad Aman and Sejal Kashyap. Next, we have our advisory board, which includes the leaders in forensic science who guides NSFS with their
invaluable experiences, and strategic vision. As the advisory board members, we have Dr. Jyoti Yadav ma'am, Miss Anjali Singhal ma'am, Mr. Shresh Kumar Srivastav sir, Miss Pragya Singhal ma'am, and Mr. Vivek Kurmi sir. We extend a warm welcome to our esteemed guests, members, and special audience to our webinar on identification of forgeries in handwriting and signature. Now, I would like over to share the podium to Miss Khushi. Over to you. Thank you so much, Punika. Now, I would like to introduce today's keynote speaker, Mr. Vivek Kurmi, sir. It is our great pleasure to welcome Mr. Vivek Kurmi, sir, a forensic consultant with a remarkable track record of delivering expert solutions in complex forensic science cases. With a strong educational foundation, including master's degree in forensic science from Sage University, Bhopal, and Bachelor of Science degree from Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar. He has developed a deep understanding of scientific principles underlying forensic science. He specializes in intricate areas such as question document examination, fingerprint analysis, insurance claims, and accidental death investigation. With expertise in laboratory techniques including DNA extraction, PCR, gel electrophoresis, spectroscopy, and microscopy. He possesses a unique blend of scientific rigor and analytical acumen. Throughout his career, he has worked with various organizations, including State Forensic Science Laboratory, Delhi, the MP Council of Science and Technology, Bhopal, and Honorable District and Session Court, Bhopal. These experiences have equipped with a comprehensive understanding of forensic science landscape and the ability to provide expert testimony that informs and shapes the justice system. We are honored to have Mr. Vivek sir in our today's guest. He joined us today to share his insights and expertise in the field of forensic science. With his remarkable expertise and passion for delivering justice, we look forward to stimulating an informative perspective. Once again, welcome, sir. I would now like to hand over the podium to sir. Over to you, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. I would like to thank all the members and respected team members of Nexus Society of Forensic Science for being here today. Before we start, I ask you a question. What comes to mind when you hear the word forgery? Anyone can tell me. Okay. So, maybe a scene from a detective movie or a criminal faking a signature. Well, it might be seen a dramatic forgery is the actual part of everyday life. It happens in a financial fraud, property dispute, and even family conflict also. But the good news is this, no matter how the skilled a forger is, there's always clue. Today, I will take you on a journey into the fascinating world of forgery detection. We will look at the science behind it, explore real life cases, and uncover how even the smallest detail can lead us to the truth. Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is my audio is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now I'm sharing the slide to help us to understand. If my screen is shareable?
Okay. Now our No, sir. visuals are Right now, clear, not. है ना? Yes, sir. So first, let's start with the basics. What is forgery? So forgery is the act of creating, altering, faking a document, handwriting, or signature with the intent to deceive or defraud someone. In simpler terms, it's a when someone faking something important like signature or document so other will believe it's real. That's why. So why the forgery happens? People commit forgery for various reasons like financial gain, manipulation, or revenge or personal motives. I give you the example for you can easily understand. Imagine a child trying to sign their parents' name on a school permission slip to skip class. That child intent is to deceive the teacher into thinking that the parents approve the absence. But there's a very basic form of forgery. But in real world, forgery can have much bigger consequences, involve legal dispute, financial fraud, and personal harms. Thankfully, forensic science is here to uncover these fakes. Now that we know the what is forgery is, let's look at the different type of forgery and how they work. So there are the mainly three types of forgery. We have counter in digital signature and handwriting, simple forgery, simulation forgery, and digital forgery. So first we have understand what is simple forgery. Simple forgery is the most basic type of forgery. This forgery create a fake signature or handwriting without even seeing the original one. I will give you the example. Like imagine someone write a random signature on a check hoping that the bank teller won't notice it's fake. So it's crude, unskilled, and often easy to detect. Why? Simple forgery because it doesn't look like the original handwriting or signature. Simple forgery is like guessing. There's no attempt to imitate the actual style, making it easy to spot. After that, we understand what is the simulation forgery. So, sorry, simulation forgery is this is in this the more advanced type of forgery where the forger tries to copy the original handwriting or signature as closely as possible. So it's required skill, practice, or sometimes it's also required tools. Simulation forgery has their own two types. First one is tracing simulation, or second one is freehand simulation. So we understand what is tracing simulation. Tracing simulation is the forgery where you use the tracing paper or another tool like carbon paper to copy the original signature directly. And in freehand simulation, the forger practice repeatedly to imitate the original handwriting or signature without using any kind of tools or aids. So, simulation forgery is harder to detect than the simple forgery. But the simulation forgery also leave clue behind it that the forensic expert can also identify it. After that, now we come on the digital forgery. What is digital forgery? So, in today's digital age, forgery has moved into the world of technology. Digital forgery involve using software to create, alter, or document or signature. Example, for example, there's a random guy, Somesh. Okay, so Somesh scan a signed legal contract, edit, and text using software like Photoshop and any other software and change the terms in their favor.
While it might be look perfect to the naked eyes, but advanced forensic tools can also detect difference in font, color, or digital tempering. So there are the मैं ये समझिए कि आप there are mainly three types of forgery. मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं इसे कि there are the three main types: simple forgery, simulation forgery, और digital forgery. So simple forgery is basically you are assuming when we have to talk as a perspective of forger. In simple forgery, you are trying to copy, and first you have to assume that the person has signed like that. You have not the original signature or any kind of कि कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती आपके पास, तो सिंपल फॉर्जरी में यू आर ट्राइंग टू अज्यूम कि वो ऐसे करता होगा. तो यू आर ट्राइंग द सिग्नेचर एंड अज्यूमिंग एंड होपिंग दैट कि दैट वुड बी पास. ये बहुत बेसिक टाइप की फॉर्जरी होती है. इसमें जो डिटेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं. इसके बाद आते हैं हम सिमुलेशन फॉर्जरी पे. तो सिमुलेशन फॉर्जरी इस बेसिकली की कॉपी करना होता है. जैसे कि हम किसी आप समझ लीजिए कि आपने जैसे हम कोई क्या कहते हैं, आप एक डायग्राम बना रहे हैं, तो यू आर द कॉपिंग ना फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ल्ड एंड ट्राइंग टू मेक द सेम थिंग. तो सिमुलेशन फॉर्जरी वैसे होती है कि आपके पास एक ओरिजिनल सिग्नेचर है या राइटिंग है, एक सैंपल है, स्टैंडर्ड सैंपल है, तो यू आर ट्राइंग टू कॉपी इट. और डिजिटल फॉर्जरी में ऐसा होता है कि आप एक जो ओरिजिनल यू हैव द ओरिजिनल वन, so you are trying to alter the document digitally form. Basically it's a digital form of forgery. Now I think there's an issue. Oh, shit. Sorry, I think there's an issue. क्या स्क्रीन शेयर हो रही है ना? Anyone can tell me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So when we understand the types of forgery, now we are moving the detection of forgery. How we detect the forgery? So there are some basically four types of method we are used to detect forgery. First one is physical analysis. So basically, physical analysis is a foundation of forgery detection. This involves looking closely at the visual traits of handwriting or signature to determine if there is a flow natural show signs of tampering. ये कहा जाए कि आप physical analysis when we detect the forgery ना, तो you have the forged document you are trying to detect forgery by the characters of handwriting and signature. You use microscope, any lens to observe that characteristics like handwriting characteristic, rhythms, length, flow, strokes, and it other. So basically, in physical analysis, we focus on a line quality, pen pressure, stroke formation. Here, I give you the example.
आप ये सोचिए कि जब आप राइटिंग करते हैं, है ना, फिर उसके आप 10 मिनट बाद उसी जो एक पैसेज आप लिख रखा है उसी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो यू हैव फाइंड ना व्हेन यू ऑब्जर्व कि यू आर स्लाइटली डिफरेंट, राइटिंग स्लाइटली डिफरेंट। तो आपने एक बार उस चीज को लिखा, लेकिन आप 5 मिनट बाद आप ही उसे दोबारा राइट कर रहे हैं, तो यू हैव फाउंड सम डिसिमिलरिटीज इन द राइटिंग व्हेन यू ऑब्जर्व। तो इट ट्राइज टू कॉपी समटाइम्स। क्या होता है कि जब आप फिजिकल, बेसिकली होता है यूं है कि हैंडराइटिंग इज अ सबकॉन्शियस कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इट डिपेंड many variables when you write something na, so you have something in mind, and after that when you write something, so there are the many factor which affect the handwriting. तो हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का एनालिसिस करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव यूज माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में हम जूम इन करते हैं। ज्यादातर ऐसा रहता है कि जब आप डॉक्यूमेंट फॉर को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वी हैव बेसिकली क्या रहता है, जब डिटेक्शन में वी हैव टू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड टू जो एक अननोन सैंपल है आपके पास। अब व्हाट वी लुक फॉर इन microscopic examination, we look ink flow, paper texture, overlapping lines. So microscopic examination is especially useful in cases where the forger has used advanced tools like tracing paper or attempt to erase and rewrite part of a document. After that, we come on a comparison analysis. So this is the method involved comparing the caution handwriting or signature with the genuine. I share my experience when I डिटेक्ट व्हेन आई मैंने एक केस किया था रिसेंटली। तो ऐसा था कि एक आपके पास जब कोर्ट से आपको एक स्टैंडर्ड सैंपल आपको दिया जाता है, तो उसमें क्या रहता है, जो फॉर्जर रहता है वो डिस्गाइज करने की कोशिश करता है हैंडराइटिंग को। तो व्हेन यू कम इन दिस फेज ना, कि आपको एक स्टैंडर्ड सैंपल्स के साथ एक जो सैंपल राइटिंग रहती है उसको मैच करना होता है ना, तो यू हैव फाइंड ना कि इन सैंपल राइटिंग देयर इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि जो फॉर्जर रहता है दे आर ट्राइज टू मिसमैच देयर राइटिंग, दे आर ट्राइंग टू डिसगाइज देयर राइटिंग। So, in comparison analysis, we could not find any similar characteristics like that कि strokes ऐसा है तो हमें इस वाले में स्टैंडर्ड में एक strokes ऐसे रहा है, तो we can also find in the unknown sample. We have to correlate that characteristics like letter shapes, slide, slant, spacing, and baseline alignment, signature variabilities, and many more things. In comparison analysis, we have to compare the characteristic, but these characteristics not always the same in the standard and the unknown sample. If you think ना कि आपने एक बार सिग्नेचर किया, then you फिर उसी के थोड़ी देर बाद आप दूसरा सिग्नेचर करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, तो दोनों सिग्नेचर आपके बिल्कुल सिमिलर नहीं हो सकते। यू व्हेन वी ऑब्जर्व ना कि उनको एक अच्छे तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे, तो यू हैव स्लाइटली डिफरेंस फाइंड, ऐसा कि थोड़ा थोड़ा बहुत कभी कुछ स्ट्रोक्स में आ गया, कभी कर्व में थोड़ी, क्योंकि कई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होता है कि आई एम बेसिकली प्रॉब्लम इज कि that writing is depend on many factors. So every time when you write, the style, the font are slightly different. After that, be coming our next slide.
मास्टर पैटर्न। देखो, मास्टर पैटर्न ऐसा कुछ नहीं होता है हैंडराइटिंग में। मैंने सारे हैंडराइटिंग के कैरेक्टर और जो सिग्नेचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको एक एक पैटर्न में डिवाइड किया है, जिससे हम इजीली उसको समझ पाए और वी कैन डिटेक्ट ऑन बेसिस ऑफ दैट। सो मास्टर पैटर्न इज MFPR। M stand for movement, F stand for form, and PR stand for partial relationship of characteristics of handwriting. So in movement is about how the writer's hands flow. We look at the direction of writing, slant of letters, rhythm, pressure, line quality, and finally the speed of writing. है ना कि बेसिकली है ये कि हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनसे हम सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वी हैव कंपेयर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। सो देयर आर द मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, दे कंफ्यूज अस। So I divided these all the characteristics in the three section: MFPR, movement, form and partial relationship। ठीक है, तो मूवमेंट में हम डायरेक्शन देखते हैं राइटिंग की, स्लैंट देखते हैं, रिदम, प्रेशर और लाइन क्वालिटी। और फॉर्म में डिजाइन ऑफ लेटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स। की कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है कि हाउ द लेटर कनेक्ट, हाउ द लेटर आर बिल्ड, and embellishment. Embellishment are the flourish or unique touches that make handwriting stand out. Everyone has like, हमने सुना होगा कि आपकी हैंडराइटिंग आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। दैट वाज रियली कि आप अगर एक आर्टिस्टिक है ना, तो यू आर ट्राइंग टू कि आपकी हैंडराइटिंग और अच्छे से दिखे। यू आर ट्राइंग टू इंग्लिश समथिंग कि एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक होगा, लेटर को थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे आप। तो वो चीजें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं, आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं। आफ्टर दैट इन पार्शियल रिलेशनशिप, so in partial relationship of letter we look the spacing and layout between the characters, distance, alignment and the size of characters. By the analyzing these three aspects, we can uncover the unique traits in handwriting and spot any sign of forgery. So if you think na ki your own handwriting, do you know ki there's a certain rhythm or spacing in your word of your own handwriting? So that's your unique style. It's almost impossible for someone to copy it. That was the basic fundamental to help us to differentiate the writing of someone and someone. After that, we come someone next slide where we study about the case Mr. SJB Satyasen versus Sumail Ganandas 2005. So let me take you back 2005 to a small courtroom filled with the tension and uncertainty. On a one hand stood Mr. SJB Satyasen holding a promissory note in his hand, and he claimed that Mr. Sumail Ganandas, a man sitting on the other side of the courtroom, he signed that document promising to repay him a large sum of amount. तो ये एक केस था SJB सत्यसेन 2005 का, जिसमें हुआ यूं था कि जो SJB सत्यसेन फायर FIR अगेंस्ट द सुमेल गनंदास कि इन्होंने मुझे एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो मैंने इन्हें दी थी पे बैक करने की कहा था, लेकिन अब ये वो मुझे कर नहीं रहे। तो व्हेन ये दैट्स मैटर कम इनटू द कोर्ट, so court hire the investigator
forensic handwriting investigator. So when the forensic expert analyzed these handwriting on the paper, that has कि उसमें क्या जो भी मैटर था कि मैं इन्हें एक पे बैक करूंगा इतने टाइम के बाद. So when the forensic expert approached the case like detective, so they carefully examined the signature under a microscope, and they weren't just looking for the how it's looked to the naked eyes. They were searching for tiny and almost invisible signs. Here, तो उसने क्या जो एक दे आर डिस्कवर एक हेजिटेशन मार्क्स और अनइवन इंक फ्लो. अब हेजिटेशन मार्क्स का मतलब होता है, आप समझ लीजिए कि आप जब अपनी खुद की राइटिंग करते हैं ना, तो यू हैव समथिंग इन योर माइंड एंड दैट बॉडी पार्ट इज कंट्रोलिंग विथ दैट माइंड, सबकॉन्शियस माइंड. सो यू हैव नॉट कि हमें ये अलग से सोचना पड़ रहा है या आपको कुछ लिखने से पहले सोचना पड़ रहा है. लेकिन जब आप किसी और को कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना, तो यू हैव ऐसे कि माइंड में कि यार ये ऐसा है वो वैसा है, तो यू हैव टू टेक पुशेस वाइल द राइटिंग. ठीक है. तो जब आप पुश करते हैं ना कि पेन को थोड़ी सी आपने कर्व लिया, फिर पुश किया, फिर थोड़ा सा स्ट्रोक्स बनाया, फिर पुश किया, तो जो इंक होती है ना वो उसी जगह पे जब आप पुश करते हैं ना उस चीज को, तो इंटेंड हो जाती है कि आप इंक फ्लो तो जो पेन का रहता है ना वो रेगुलर फ्लो में रहता है, लेकिन जब आप उसको वहां रोकते हैं ना तो देयर इज एनी इंक बॉल्ब आर क्रिएटेड ऑन द सिग्नेचर. मतलब राइटिंग में आ जाती है. जब आप कर्व बनाएंगे और रुक जाएंगे ना, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे एक हल्का सा इंक का डॉट आ गया है या फिर कुछ ऐसा कि इंक फ्लो बहुत सही जा रहा था, लेकिन जब आप रुकेंगे वहां तो हल्का सा एक टिनी डॉट बन जाता है या फिर ऐसे कि लेक ऑफ इंक आ जाती है. हल्का सा देखेंगे आप जब माइक उसे एब्जॉर्ब करेंगे लेंस से, तो दे ऑल्सो फाउंड दैट. और अनइवन इंक फ्लो की दी स्ट्रोक लैक्ड स्मूथनेस एंड कंसिस्टेंसी. होता ही यूं है कि जब आप मेनली बेसिक यह रहता है कि जब आप किसी और की को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो आप उसे देखकर बार बार कॉपी करते हैं. ठीक है. तो जब आप देखने की देखते हैं ना और लिखने की कोशिश करते हैं तो एक फ्लो टूट जाता है राइटिंग का. उससे वो जो लाइन क्वालिटी की स्मूथनेस रहती है ना वो कम हो जाती है. अब जब एक्सपर्ट ने उसे फाइंड आउट किया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हेजिटेशन मार्क्स हैं, अनइवन इंक फ्लो है, तो दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ना इज डिफाइन द फॉर्जरी of the with this evidence. The forensic team conclude that the signature was forged and they present their finding to the court, explaining each clue in detail to the court. So court judge announced, they decide the promissory note was invalid and the case was dismissed. For Mr. Ganandas, that the opposite party, दिस इज वन जस्ट ए लीगल विक्ट्री. उनके लिए कोई ऐसा नहीं था कि यार कि मैं एक केस जीत गया. उन्हें जो एक चार्ज लगा था अपनी इमेज पे, रेपुटेशन पे, उसे भी क्लियर करना था. तो इट्स ऑल्सो नॉट अबाउट द कि आप फॉरेंसिक हैंड राइटिंग एनालिसिस यानी कि यार ये हो गया ठीक है. लेकिन आप ये सोचिए ना कि इट्स फैसिनेटिंग हाउ स्मॉल डिटेल्स इंडिविजुअल्स to the naked eye can protect someone's reputation and financial future. So after that becomes our second case, J. Naval Kishore and others, 2007. Now let's turn to the another case, 2007. This one isn't just about the money and
It's about the family and fairness. So, at the center of the case was Mr. J. Naval Kishore, who presented a will stating that all the deceased property had been left to him. But the other family member felt uneasy. किसी एक के लिए आप सारी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो एकदम से छोड़ के नहीं जा सकते, आपका कितना भी गरीब हो आपके पास, क्योंकि आपकी फैमिली में कई और भी मेंबर्स होते हैं. सो समटाइम समथिंग एल्स डिडंट एड इट अप. द सिग्नेचर ऑन द विल डिडंट लुक लाइक द, मतलब वंस दे रिमेम्बर्ड, उन्हें जैसा याद था, जो अदर फैमिली मेंबर्स थे उन्हें याद था कि शायद जो हल्का सा एक रहता है कि नहीं नहीं ये चीज ऐसी थी, या मतलब कोई भी रिमेम्बर होगा कि यार इनके सिग्नेचर ऐसे होते हैं. वी हैव टू रिमेम्बर समथिंग, ऐसे कि हल्का सा याद रहता है कि ये ऐसा है, ये हाँ हो सकते हैं उनके, ये नहीं हो सकते हैं. सो अब इमेजिन द इमोशनल वेट इन द कोर्ट रूम वंस ऑन अ हैंड, one on hand कि you have a family mourning their losses, on the other hand suspicious that someone else might be trying to manipulate the deceased wishes. To resolve the matter, the court turned to the handwriting expert. The expert got to work, analyzed the dispute bill and comparing its signature with the genuine one from the registered document. तो जो रहता है कि आप जब ऐसे रहता है कि आप जब एक केस कोर्ट में जाता है, या एक फॉरेंसिक हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन वाले को, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को, जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मींस होता है कि जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट है या जो भी है डॉक्यूमेंट रहता है मेनली विच इज सबमिट इन ऑलरेडी इन द कोर्ट. सो वो डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है, दैट वाज द स्टैंडर्ड वन. ठीक है. फिर उसके बाद जब केस फाइल होता है, प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो जैसे चार्ज होता है कि ए का बी पे कि इनने फॉर्जरी की है डॉक्यूमेंट में. अब बी के आप कोर्ट जो बी रहेगा, बी से सैंपल्स राइटिंग लेगा, कलेक्ट करता है. जैसे सिग्नेचर्स होते हैं तो सिग्नेचर्स के केसेस में मोर देन 25 सिग्नेचर्स है ना, और राइटिंग के केसेस में व्हेन द कि आप राइटिंग को मैच करना है तो मोर देन 5 पेजेस वी आर कलेक्टिंग, कि केस कलेक्ट करता है एक सैंपल राइटिंग. ठीक है. तो वी हैव द स्टैंडर्ड वन. ठीक है. सेकेंड वन इज सैंपल राइटिंग, और थर्ड वन इज कि अब ऐसे रहता है कि जब आपने सैंपल कलेक्ट किए तो फॉर्जर क्या रहता है कि कभी कभी कोशिश करता है कि नहीं नहीं मतलब डिस्गाइज करने की, आपके कैरेक्टर जानबूझ के अपनी राइटिंग को बिगाड़ देता है, अलाइनमेंट वर्ड की जो फॉर्मेशन रहता है, कैपिटल को स्मॉल कर देता है, स्मॉल को कैपिटल कर देता है, कोई नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देता है. तो कोट ऑल्सो कि मतलब यार ये जो सैंपल राइटिंग आपने कलेक्ट की है वो एकदम से ऐसे स्टैंडर्ड नहीं हो जाती कि आप स्टैंडर्ड के साथ एकदम से मैच कर पाए. तो कोर्ट ऑल्सो प्रोवाइड की एनी काइंड ऑफ राइटिंग, मतलब कि केस होने से पहले जो पुरानी स्टैंडर्ड राइटिंग रहती है कि आपकी कॉपीज की राइटिंग जो आप पहले लिख चुके हैं उस टाइम पे, तो दे ऑल्सो कलेक्ट दैट राइटिंग. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मैच दीज 3 सैंपल्स विच ईच अदर, कि आप पहले सैंपल को मैच करेंगे जो पुरानी उसकी राइटिंग है, रजिस्टर्ड राइटिंग है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे 12 का कोई केस है आप समझ लीजिए, और 11 में आप क्लास 12th में थे. ठीक है. तो भी मतलब क्लास 12th की जो कॉपीज रहेंगी उनकी राइटिंग भी कलेक्ट करता है, क्योंकि सैंपल जो राइटिंग रहती है ना और जो पुरानी राइटिंग रहती है उसको पहले मैच करके देखा जाता है कि हाँ कि ये आपने इसको डिस्गाइज करने की कोशिश तो नहीं की है या कोई भी, और चीजें ऐसे समझ में आ जाती है ना कि जब आप सैंपल राइटिंग कलेक्ट करते हैं तो सैंपल डिस्गाइज राइटिंग का ये रहता है कि उसका मेन बेसिक प्रिंसिपल ये रहता है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती. जब आप अपनी राइटिंग को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं ना कि नए फॉर्म्स ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं राइटिंग में, तो आपकी वो चीजें क्योंकि हैबिचुअल तो है नहीं वो चीजें, कि आपकी जो पुरानी राइटिंग है वो कहीं ना कहीं मतलब आ ही जाती है. तो फर्स्ट बी व्हेन वी एग्जामिन द सैंपल विद द पुरानी जो रजिस्टर्ड राइटिंग रहती है उसके साथ, और
After that, we are compare the standard one to the sample writing or signature. So come to the case कि जब उनने ऐसे रजिस्टर्ड राइटिंग का मतलब आप समझ गए ना, तो रजिस्टर्ड राइटिंग को कलेक्ट किया और एक्सपर्ट को दिया। तो एक्सपर्ट ने फाइंड किया कि द सिग्नेचर ऑन द बिल वेयर द स्लो एंड डेलिब्रेट, दे वेयर नॉट क्लियर, they are inconsistent, even the formation of certain letter didn't match. तो जब आप मतलब ऐसे हैंडराइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे ना, तो उसमें ऐसे मोर देन आई थिंक 32 कैरेक्टरिस्टिक्स एवरी वर्ड हैज, कि एक वर्ड ही आपका करीब करीब 30 के आसपास कैरेक्टर होते हैं एक सिंगल वर्ड में। तो वेन यू कंपेयर ना कि आप ये सैंपल है और ये स्टैंडर्ड है, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं। या आप एक सैंपल ही उठा के देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आती हैं जब आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स पता होते हैं हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की, कि क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो व्हेन द एक्सपर्ट फाइंड कि स्लो है, डेलिब्रेट है, इनकंसिस्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन लेटर मतलब मैच ही नहीं हो रहा है, तो ये जो चीजें होती है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दे आर द मतलब दे आर द साइन ऑफ फॉर्जरी। सो द फोरेंसिक एक्सपर्ट एक्सप्लेन देयर फाइंडिंग टू द कोर्ट स्टेप बाय स्टेप, and they highlight every inconsistent and demonstrate how the signature on the will bear fake. जब yes, so court decide कि this bill is not invalid, or property would not go to exclusive to Mr. Kishore. Instead, it would be distributed fairly among the rightful heirs. So when we study na these kind of cases, कि एक वो एक वहां तक नहीं रह जाता कि यार आप केस जीत गए हैं या आप सच पे थे या वो चीजें। तो जब ये चीजें आप केस समझते हैं तो आपको पता चलता है कि वैल्यू क्या होती है हैंडराइटिंग की, या फिर एक सिग्नेचर की, सिंगल के सिग्नेचर की, या साइंस की, फिंगरप्रिंट या क्यूडी की, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हैंडराइटिंग की, एग्जामिनेशन की। सो बेसिकली दिस स्टोरी रिमाइंड अस the incredibly role forensic expert play, not just in solving crimes but in protecting fairness and truth, even in the most delicate situations. So in conclusion, देखो क्या रहता है कि मैं आपको बहुत आसानी से एक सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूँ कि फॉर्जर कितना भी ऐसा हो कि बहुत प्रैक्टिस करता हो, या एक साइन को करने की बहुत सारी प्रैक्टिस करे, या फिर कि आप मतलब कि देयर अ एवरी सिचुएशन हैज अ चांस कि आप कितना भी चालाकी से किसी चीज को कॉपी करोगे ना, तो ओरिजिनल वन इज ओरिजिनल, है ना, और कॉपी इज कॉपी। सो and we should differentiate these two things by the studying question document and handwriting characteristics. So by studying handwriting traits like the key movement, form, spacing, we can easily understand what is the difference between the copy one and the original one. So forensic science isn't just about the catching forgery, कि यार एक फॉर्जरी को डिटेक्ट कर लिया, या कि आपने एक केस को सॉल्व कर दिया एक डिटेक्शन या हैंडराइटिंग एनालिसिस से। इट्स अबाउट द प्रोटेक्टिंग फेयरनेस एंड जस्टिस। आप एक ऐसे डिफाइन कर रहे हैं ना कि किसी एक बेसिक है कि आप एक जस्टिस को, अगर आप सोचिए ना कि हैंडराइटिंग मैच करके आप किसी को जस्टिस दे रहे हैं या फेयरनेस हो रहा है, तो दैट वाज गुड। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। After, I would love to answer any question if anybody have. Thank you, sir. Now you Good can morning. unmute you if
If you guys have any doubt, you can unmute yourself and ask it to sir, or you can put your question in chat box also. Thank you so much, sir, for this wonderful session. थैंक यू अनी। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो भी आपके पास हो, यू कैन फील फ्री टू आस्क। देयर अ डिस्कशन ना, कि आप चीजों को डिस्कस कर रहे हैं मुझसे, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन हो या बहुत, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आपके पास कोई भी ऐसा हो कि सर ऐसा है तो ऐसा कैसे होगा, कुछ भी, यू कैन आस्क एनीथिंग फॉर मी। Yes, Aryan, you are raising your hand. You can unmute yourself and ask the question. खुशी, I think Yes, sir. your Good morning. audio is not clear. Good morning, sir. Good morning. Sir, I have a doubt. सर, जैसे कि Yeah. हम बचपन में जैसे लिखना सीखते हैं, जी, तो हम घर में सीखे या स्कूल में सीखे, सो ठीक मोस्ट है। ऑफ द हैंडराइटिंग वी अडॉप्ट फ्रॉम द पर्सन वी लर्न फ्रॉम। लाइक अगर मैं अपने पेरेंट्स से लिखना सीखूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे ही कुछ ना कुछ अडॉप्ट करूंगा, चाहे उनका हाँ, स्पेशली कोई या फिर अगर मैं स्कूल में सीख रहा हूँ, टीचर मेरे को सिखा रहे लिखना, उससे मैं सीखूंगा। तो सर, इज दैट पॉसिबल वी राइट सिमिलरली और काइंड ऑफ सिमिलर नहीं राइटिंग? नहीं, क्या रहता है मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए मैंने अपने स्कूल में सीखा, ठीक है। तो आप सिंगल नहीं होते कि अपने स्कूल में आप अकेले बच्चे हैं जिन्हें आपने एक ए सिखाया फिर बी सिखाया। पता प्रॉब्लम क्या होती है कि क्यों नहीं हम बिल्कुल एकदम से सेम एग्जैक्टली, क्योंकि बेसिकली हैंडराइटिंग तीन चीजों से चलती है कि आप कितना कैरेक्टर को कितने अच्छे से, किसी भी सिंगल जैसे ए मान लीजिए, तो आपने उसको कितने अच्छे से राइट लिखना सीखा है, कैसे द फॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड कैसा है उसका, ठीक है। क्योंकि सबके पास एक अलग होता है कि आप लो डाउन से अप जा रहे हैं, अप से लो जा रहे हैं, या कर्सिव में लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू रिकॉग्नाइजेशन, जैसे आप किसी चीज को लिख रहे हैं ना, तो पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन आपकी क्या है कि आप लिखते वक्त वर्ड्स को सोच कैसे रहे हैं। वो चीजें ना जब कंबाइन करती है ना, तो दे आर डिफरेंशिएट द, मतलब हैंड राइटिंग को डिफरेंशिएट करते हैं। अब आप कह रहे हैं पेरेंट्स का, तो ये इफेक्ट आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आता। जब आप अपने पेरेंट्स की राइटिंग को एज अ स्टैंडर्ड समझ के उसको कॉपी, क्योंकि आपको पता नहीं होती ना जब तब चीज, तो आप क्या करते हैं कि उन चीजों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे राइटिंग का भी है, तो हम कैसे सीखते हैं, ऐसे ही सीखते हैं कि कॉपी कर करके, ठीक है। लेकिन वो चीजें जब वर्ड्स धीरे धीरे आप बड़े होते जाते हैं ना, तो फिर अपने हिसाब से, अपने आप से, ऐसे कि अब ए मैं ऐसा करूंगा, इसको ऐसे बनाऊंगा, तो आप अपने हिसाब से कैरेक्टर्स को मॉडिफाई करने लगते हैं। और वो मॉडिफिकेशन जब होता है ना, तो दैट वाज द डिफरेंशिएटर फॉर योर राइटिंग। इज दैट क्लियर? Sir, one more question. Sir, like second, how can a handwriting can be so difficult that no one can copy each other handwriting? Because sir, कुछ तो देखो, इसी कारण कॉपी नहीं कर हाँ, पाते, मतलब कुछ नहीं, स्पेशलिटी। प्रॉब्लम क्या होती है, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं। क्या है ना कि जब हैंडराइटिंग को आप किसी की हैंडराइटिंग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब, अब जैसे आप मान लीजिए कि 22 साल के हो गए हैं, ठीक है, अज्यूमिंग, तो आप करीब करीब 18 साल से एक शब्द को अपने तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो, अब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, यू ड्राइविंग अ बाइक, राइड अ बाइक, सॉरी। तो अब जब आप शुरुआत में रहते हैं ना, तो चीजें आपको मतलब ऐसे सोचना पड़ता है कि हाँ, एक ब्रेकर है तो ब्रेक लगाना है हल्का सा, या कुछ भी। पर जब आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं कि आपको वो चीजें, अब वो चीजें पता कि हैंड सबकॉन्शियस माइंड में चली गई आपकी, वो ड्राइविंग स्किल्स।
आपके पास स्किल हो गई वो कि आप सबकॉन्शियस, अब सोचना नहीं पड़ता आपको। ब्रेकर पे आता है तो आप खुद ब खुद ब्रेक लगा लेते हैं या गियर चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे ही हैंड राइटिंग का होता है कि आप जब राइटिंग 18 साल से एक शब्द को एक ही तरीके से अपने तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब एक सडनली आप किसी को कॉपी करते हैं, तो अब वो हैंड राइटिंग आपके सबकॉन्शियस कैरेक्टर हो गई कि आप वो स्किल हो चुकी है ना। या 18 साल से इस चीज को एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से करने की, ठीक है। लेकिन जब आप सडनली किसी चीज को ऐसे दूसरे तरीके से कोशिश करने, तो आपको एक हल्की सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, देखो राइटिंग क्या रहती है, सबकॉन्शियस माइंड कंस्ट्रक्शन और बॉडी कोऑर्डिनेशन की वजह से होती है। कि आप कुछ सोच रहे हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक है। अब सबकॉन्शियस माइंड के पास जो स्किल्स हैं या जो उसने सीख रखा है, उसी हिसाब से आपको इंस्ट्रक्ट करेगा आपके बॉडी पार्ट्स को कि इस लेटर को ऐसे फॉर्म करना है। लेकिन अब जब आप कॉन्शियस माइंड, है ना, कि कॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इसकी कॉपी करनी है, ठीक है, तो सबकॉन्शियस के माइंड के पास इंस्ट्रक्शन तो है, ठीक है, विजुअल्स भी हैं, पर आपको पता नहीं होता ना कि एकदम से इसको चेंज कैसे किया जाए, क्योंकि आप उस वर्ड को किसी और तरीके से करते थे, है ना। सीधा सिंपल ये रहता है कि आप किसी चीज को एक बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं एक तरीके से, एक सर्टेन तरीका है उसको करने का, लेकिन आप जब उसको तरीके को बदलने की कोशिश करते हैं तो यू हैव सम प्रॉब्लम, क्योंकि एक फंक्शनैलिटी आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर वो बॉडी फंक्शन द करस्पॉन्डिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड आर अल्टर। और ऐसा नहीं है कि एकदम से कॉपी करने की आप जब बैठेंगे तो एकदम से कर लेंगे, क्योंकि क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दैट कैरेक्टर ऐसे, वो एक कैरेक्टर ऐसे नहीं बना है, उसके पीछे भी कई सालों की प्रैक्टिस है, ठीक है। और आप सडनली जब उस चीज को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो एक तो आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी फिर आ जाता है कि यार ये तो ऐसे बनाना था, जिसको ऐसे कैसे बना, तो वो बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता सबकॉन्शियस माइंड से। तो ऐसे और भी कई फैक्टर्स रहते हैं, जैसे पेपर टेक्सचर हो गया, है ना, सिटिंग पोजीशन हो गया, ठीक है, बॉडी और आई कोऑर्डिनेशन हो गया, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट और आई कोऑर्डिनेशन हो गया, है ना, और इन्वायरमेंटल मेंटल प्रेशर। जब आप फैक्टर्स पढ़ेंगे ना, हैंड राइटिंग किस किस चीजों पे डिपेंड करती है ना, तो यू हैव टू क्लियर कि एक एकदम से सेम क्यों नहीं लिख सकते। अब जैसे समझ लीजिए कि आपने कुछ लिखा, ठीक है, और लिखते वक्त आप कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है, किसी पोजीशन में बैठे हैं, आप नीचे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं या खड़े होकर लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो पेन का एंगल होगा टुवर्ड द पेपर, है ना, और आई का कोऑर्डिनेशन, पोस्चर, वो चीजें आपके वर्ड के फॉर्मेशन को डिफरेंशिएट। फिर अब जब आप उसको कॉपी करने की, आपको तो पता नहीं होता है कि वो किस सर्कमस्टेंसेस में लिखा गया है कैरेक्टर, तो आप किसी और में लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप एक अलग बैकग्राउंड के साथ, आप समझ रहे हैं ना, कि एक अलग बैकग्राउंड, एक अलग सर्कमस्टेंसेस, अलग कंडीशन में उस चीज को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट वाज कि नहीं हो पाती फिर चीजें। इज जी दैट सर। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर फॉर द आंसर। ओके, इज एनीबॉडी एल्स? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर वो डिजिटल सिग्नेचर है ना सर, वो डिजिटल जी, सिग्नेचर को एक कहाँ तो कॉपी करने का ऐसा रहता सर, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसा करने का ये है सर, कुछ तो क्या सॉफ्टवेयर है देखो क्या? मैं बताता हूँ कि डिजिटली जो मैं आप सिग्नेचर में नहीं, मैं आपको एक फाइल्स का बताता हूँ कि डिजिटली फाइल्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं आप, है ना। सो होता क्या है, जब आप साइबर में जाएंगे, फॉरेंसिक साइबर्स में जाएंगे, साइबर, है ना, तो क्या, सबसे पहले आपको मैं एक बेसिक सा बता दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है, बाद में हम उस प्रोसीजर पे जाएंगे कि कैसे उसको कर। तो पहले क्या रहता है, जैसे आप कोई आपकी एक, जैसे एक फोटो मान लीजिए, है ना, अब आपने उसको एक सिंपल से नॉर्मल एंड्रॉइड से खींची, ठीक है, और आपको उस व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भेजी, दोस्त को। तो जब आप दोस्त के फोन में देखेंगे ना, तो उस फोटो को, एक प्रॉपर्टीज को देखेंगे, तो उसमें लिखा आएगा कि किस फोन से उसको खींचा गया है और किस पाथ से उसको भेजा गया है आपके फोन में। उसमें सिंपल सा लिखा आता है कि इतने टाइम पे खींची गई है,
और ये पाथ बाय व्हाट्सएप यू कैन इजीली चेक द फोल्ड, एवरी फोटो हैज दैट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो वो चीजें हो गई, तो इसको कहते हैं मेटा डेटा। जब आपके दोस्त के फोन में वो फोटो है और आप उसको एडिट करेंगे, ठीक है, और वो जैसे आपके आईफोन, उसके दोस्त के पास आईफोन है, ठीक है, तो उसने एडिट करके आपके एंड्रॉइड में वापस भेज दी। तो अब वो जब एडिट हुई एंड्रॉइड आईफोन में ना, तो उसका जो फाइल का मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा मतलब उसके कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो चेंज हो जाते हैं और वो अपग्रेड उस इमेज के साथ इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो वो जब आपको भेजेगा ना, तो आप भी चेक करेंगे उसमें, तो आपको पता चलेगा कि वो कब एडिट हुई है। तो एक सिंपल सा तरीका होता है कि हम अल्टर्ड फाइल का पता कर सकते हैं कि इसको कब अल्टर किया गया है, ठीक है, और किससे अल्टर किया गया है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। मोस्टली हम ऐसे कर देते हैं मेटा डेटा का डिटेक्शन, ठीक है, कि डिजिटल फाइल अल्टर तो नहीं है या इसको ऐसे कुछ भी ऊपर नीचे तो नहीं किया गया है। फिर जब हम एडवांस में आते हैं कि क्या कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर किसी केस की बात कर लो साइबर में, तो जब कलेक्ट करते हैं ना किसी का डेटा, जैसे आप साइबर में जब एक्सपर्ट्स कलेक्ट करता है कंप्यूटर डेटा या कुछ भी, तो वो कुछ नहीं करता है। वो एक जैसे आपको दिया गया, जैसे आप साइबर में पढ़ेंगे ना, तो एक कॉपी दी आपको कि ये डेटा है। अब उस डेटा को सबसे पहले तो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना। प्रोटेक्ट आप कैसे करेंगे? तो प्रोटेक्शन के लिए, उस डेटा के प्रोटेक्शन, पहले तो आप उसका एक कॉपी बनाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल के साथ आप कोई भी ऐसा जब रियल में आप केस करेंगे ना साइबर्स में, तो पहले जो ओरिजिनल वन को डेटा है ना, उसको आप कॉपी करके एक अलग रख लेंगे, ओरिजिनल को अलग रख लेंगे और कॉपी अलग रख लेंगे। कॉपी होता है एग्जामिनेशन के लिए। तो जो ओरिजिनल रहता है, ओरिजिनल को आप प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? तो प्रोटेक्शन के लिए इंक्रिप्शन करते हैं, उस डिजिटल डेटा का इंक्रिप्शन करते हैं। अब इंक्रिप्शन में ऐसा होता है कि आप सिंपली समझ लीजिए कि हमने एक फोटो की एक रैंडम नंबर लिख दिया उस फोटो का, ठीक है, और अब जब हम किसी और को भेजेंगे ना, तो उस बीच में अगर कोई मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मैंने एक कोड लिख दिया 1 to 8, ठीक है, उस फोटो के साथ एसोसिएट इंक्रिप्शन में ऐसे होता है कि एक कोड इंक्रिप्ट कर दिया हमने, उसमें एक लगा दिया कि 1 to 8 इसका कोड है फोटो का, ठीक है। अब जब मैंने सामने वाले को, रिसीप्टर को भेजा, और उसके बीच में अगर किसी ने उसको लेके और उसको ऐसे कि अल्टर कर दिया, तो वो जो कोड रहता है इंक्रिप्शन कोड, वो चेंज हो जाता है। तो एक तो ये बेसिक, मतलब जब एडवांस में जाते हैं तो वहां से हम वैसे पता करते हैं कि हाँ इंक्रिप्शन हो गया, फिर डुप्लीकेशन हो गया। देयर आर मेनी मेथड टू प्रोटेक्ट डिजिटल डेटा, ठीक है। ऐसे रहता है, मैं सिंपली यही रहता है कि आप जैसे अगर आपको सिंपली पता करना है कि किसी फोटो या सिग्नेचर या कोई भी डिजिटल फाइल अल्टर की गई है या नहीं की गई है, तो यू कैन चेक देयर प्रॉपर्टी और द मेटा डेटा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Thank you, sir. Sir, I have a question, sir. Oh, That okay. there is a question from Viresh. Brief Yes, about yes. scope after BSc Forensic Science and MSc Forensic Science in field of question document. तो देखो वीरेश, मैं तुम्हें बता दूं कि बीएससी में तो ऐसा रहता है मोस्टली, आई थिंक, कि यू हैव टू कंबाइन फॉरेंसिक सब्जेक्ट्स। आपको एंथ्रो भी रहेगा, जूलॉजी भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, टॉक्सिको भी रहेगा, क्यूडी भी रहेगा, फिंगरप्रिंट भी रहेगा, बैलिस्टिक्स भी रहेगा। मतलब सारे ब्रांच एक साथ मिलके एक हल्का सा आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप एमएससी में एडमिशन लेते हैं, जब मैंने लिया था, मुझे ज्यादा कॉलेज का आइडिया नहीं है कि किसमें क्या फॉर्मेट रहता है, पर मैंने जब लिया था, तो फर्स्ट ईयर आई हैव स्टडी अबाउट कि बैलिस्ट, हल्का सा एक बैलिस्टिक के बारे में भी पढ़ा मैंने, टॉक्सिको की एक सब्जेक्ट को आप मतलब कुछ कुछ ऐसे गिने। जब एमएससी में आते हैं ना, तो कुछ सब्जेक्ट आपके यहाँ वहां के हट जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट पे फोकस हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको एक कंबाइंड पढ़ना पड़ता है, लेकिन आफ्टर दैट व्हेन यू कम इनटू द सेकेंड ईयर ना, तो आपको फिर एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है कि आपको क्यूडी में जाना है कि फिंगरप्रिंट में जाना है,
कि बैलिस्टिक्स में जाना है कि टॉक्सिको में जाना है, तो 1 साल फिर आपका वो स्पेशलाइजेशन हो जाता है, ये रहता है। Okay. Thank you, sir. Here is also one question from Chaitanya. Sir, do we यस, have an आप AI integrated tool for the यस analysis of question sample? यस यार, देयर आर सम मेनी टूल्स लाइक, मतलब अपने यहाँ इंडिया में बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे एक फॉरेंसिक्स करके है, अटॉप्सी करके है, तो वो एक डिजिटली टूल्स हैं जो गवर्नमेंट के पास, मतलब टूल इन द सेंस की एप्स हैं कंबाइंड, कि आप उन चीज उस एप्स के थ्रू आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और बहुत सारी कि आप उसको एनहेंस भी करते हैं क्वालिटीज को, कि जैसे आपने एक बहुत पुराना पेपर है, ठीक है, आपके पास फोटो है, तो अब आपको कैरेक्टरिस्टिक का कंपैरिजन तब कर पाएंगे ना कि जब उस डॉक्यूमेंट को एक मतलब इस लेवल तक लेके आएंगे कि कंपेयर कर पाए आप कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स और प्रोसेस रहती हैं, बहुत सारे अलग अलग विंडोज रहती हैं, अलग अलग मतलब टूल्स रहते हैं। अटॉप्सी इज द मोस्ट फेमस इन इंडिया, दैट वुड आई थिंक कि इंडिया में हर एफएसएल में और सीएफएसएल में उसका यूज होता है साइबर की फील्ड में, एंड मैनी मोर अदर है So what is the कि बहुत reliability? सारे आ गए हैं अब तो। So what is the reliability of the tools, like AI integrated tools? देखो, रिलायबिलिटी यार, देखो मैं ऐसे एकदम से नहीं कह सकता कि 100% श्योर रहता है, क्योंकि एआई इज एआई आई थिंक। तो दे डिड अ मिस्टेक, है ना, तो हम उसके क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए एक मैनुअल करते हैं कि आप एकदम से रिलायबिलिटी नहीं हो सकती। पर आज प्रॉब्लम ये है ना कि कोर्ट भी परमिशन देता है हमें कि हाँ ठीक है, 90% अगर एविडेंस पे अगर उसका है कि रिलायबिलिटी चेक होते हैं ना, फिर तो कि अगर जब कोई मार्केट में प्रोडक्ट आया है तो उसकी रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी सारे चेक्स होते हैं कि आप, हाँ, एक सैंपल लगाए जाते हैं, 1000 सैंपल लगा रहे हैं आप, ठीक ठीक है, तो 1000 सैंपल के बाद आप पता चल रहा है कि अगर वो मोर देन 980 के आसपास अगर उसकी एक्यूरेसी आ रही है, तो वैलिडिटी उस हिसाब से काउंट करते हैं हर टूल्स की। ऐसे नहीं रहता है कि नहीं नहीं कि हम खुद से कर पाए। तो वो एक ठीक रहता है कि प्रोडक्ट के साथ आपको, और फिर ऐसा भी रहता है ना कि कोर्ट परमिशन अलाउ कर रहा है उस चीज की कि हाँ मैं इस चीज को, इस एविडेंस को काउंटर कर रहा हूँ या इसको एडमिसिबल है ये, तो फिर ये चीज होती है कि उसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसने वो सारे चेक्स या जो भी रहते हैं उनको क्रॉस किया होता है। तो दे आर कंपनी डिसाइड कि हाँ कितनी क्रेडिबिलिटी है, दे चेक मेनी टाइम्स कि यहाँ करेंगे वहां हजारों सैंपल्स लगाते हैं, तो वो उन हिसाब से अपनी क्रेडिबिलिटी बताते हैं। फिर हम अपने हिसाब से उसको चेक करते हैं, हम मान लेते हैं कि 10 सैंपल लगा के देखे, अगर उनमें से 9 के भी ठीक आ रहे हैं ना, तो दैट इज 90% एक्यूरेसी। उस हिसाब से फिर क्रेडिबिलिटी चेक होती है। तो अटॉप्सी का वही है कि यार उसने मतलब ऐसे रहता है कि अटॉप्सी इज द मोस्ट एक्यूरेट टूल फॉर द साइबर टाइम काइंड ऑफ, ऐसे काउंटर द क्राइम, साइबर क्राइम। इज Okay, दैट sir. क्लियर? Thank you, sir. यप। Yes, sir. The next question from Akshat. यस। Sir, with under handwriting pattern, we identify type of crime. कैन यू प्लीज टेल मी खुशी, व्हाट इज क्वेश्चन? आई डिडंट हियर इट आउट। Handwriting patterns, we identify types of crime. With the help of handwriting patterns, we can identify types of crime. Is that possible? यार देखो, यार क्राइम को हाँ ये कह सकते हैं हम कि हैंडराइटिंग से हम किसी की मेंटल सिचुएशन का ऐसे पता कर सकते हैं कि उसकी क्या मेंटल कंडीशन है। पर वी आर नॉट द श्योर अबाउट द वो कि जज एकदम से एग्जैक्टली क्या सीन है कि कैसा है। पर हाँ कि वी आर अज्यूमिंग, हम किसी की यार ऐसे सीन के बारे में नहीं बता सकते, हाँ लेकिन हम किसी की पर्सनल
जो उसकी पर्सनालिटी रहती है बंदे की, हम उसके बारे में जरूर पता कर सकते हैं हैंड राइटिंग का। मैं एक बहुत अच्छा बता दे रहा हूँ, सिंपल सा है, तुम अपनी राइटिंग में भी देख सकते हो, तुम्हें पता चलेगा। तो जब हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं ना, तो और एक बहुत एक्साइटेड रहते हैं और राइटिंग करते हैं, तो तुमने अगर ध्यान दोगे उस चीज पे, अपनी राइटिंग पे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी राइटिंग जो होती है ना, थोड़ी सी अपवर्ड होती है। कि एक आप लिखना फ्रॉम, अगर लेफ्ट टू राइट लिखने की कोशिश करना, तो आपकी जो बेसलाइन अलाइनमेंट होगी ना, हल्का सा धीरे धीरे ऊपर जाती जाएगी राइटिंग, वर्ड्स ऊपर जाते जाएंगे, लाइन के जो नीचे बेस लाइन होती है उसके थोड़े से हल्के से ऊपर जाते जाएंगे। और जब आप थोड़े से डिप्रेस होते हैं, तो आपकी राइटिंग, जो राइटिंग का फ्लो रहता है ना, तो डाउनवर्ड जाता है। कि आप पूरी बेस लाइन से लिखना स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन जब लास्ट में पहुंचते हैं ना, तो हल्का सा उस लाइन के क्रॉस हो जाते हैं वर्ड। तो वी कैन ऑल्सो, मतलब कि हम उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं यार, कि उसके पर्सनल ऐसे केस, क्राइम सीन के बारे में थोड़ा सा ऐसे बहुत मुश्किल है कहना। पर हाँ, कि अगर उसकी पर्सनालिटी या उसके माइंड में क्या चल रहा है वो पता चल जाए कि डिप्रेस्ड है, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई ना कि हाँ। एक केस था, मैंने हैंडल किया था, तो वो सुसाइड केस था। उसमें ऐसा था कि गेट गेट का वो थोड़ा सा मैं बता नहीं पाऊंगा, पर उसमें सीधा ये था कि मुझे दिया गया था सुसाइड नोट। तो उसमें पता करना था कि बंदे ने की है सुसाइड या किसी ने मारा है। ठीक है, क्योंकि वो एक दिन पहले बहुत खुश था या जो भी था, बहुत सारे ऐसे था कि नहीं करना, सबको यही लग रहा था कि उसने नहीं किए। तो जब उसको मैंने ऐसे सुसाइड नोट को बहुत अच्छे से देखा, तो मैंने देखा कि उसकी राइटिंग जो है ना, डाउनवर्ड जाती जा रही है धीरे। उसके वर्ड्स ऐसे, वर्ड्स का फ्लो बहुत ऐसे डाइवर्स होता जा रहा है, स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो डिप्रेशन वाले होते हैं, कि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द डिप्रेशन फ्रॉम द राइटिंग एनी एनीवन की, मतलब किसी की भी राइटिंग से आपकी उसकी मेंटल कंडीशन का आराम से पता लगा सकते हैं। तो डिप्रेशन में होता है ना, तो खुश होगा तो तब तो वो सुसाइड करने का सोच भी नहीं सकता। वी कैन बी कंक्लूड दैट कि हाँ, जब आप डिप्रेशन में है, उसकी मेंटल कंडीशन डिप्रेस्ड है, तो वी कैन बी की अज्यूमिंग कि हाँ, हो सकता है इसने कर किया है वो। बाद में जब हुआ तो फिर था ही, वो सुसाइड ही था। Yes, sir. Next question is based on this from Zahir. बस। Sir, यस। can we identify the emotional status of a victim through handwriting? यस, ऑफ कोर्स। आई मैंने पहले अभी बताया ना आपको कि हाँ, आप मेंटली उसका पता कर सकते हैं कि उस कंडीशन में जब वो राइटिंग कर रहा था, कि किस कंडीशन में था वो। कि वो डिप्रेस था, एक्साइटेड था, कि सोच रहा था कुछ। क्योंकि मैं आपको देखो एक हल्के हल्के से कैरेक्टर बता देता हूँ कि डिप्रेशन में आपकी राइटिंग डाउनवर्ड जाएगी, है ना। अगर आप समझ पा रहे हैं, डाउनवर्ड का मतलब होता है कि जब आप देखो, हल्का सा आप राइटिंग को लिखना, अगर लाइन वाले में लिख रहे हैं, अगर आपको चेक करना है तो A4 साइज का ब्लैंक पेज लेना है ना, कि आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, या किसी की भी पता करनी हो, तो एक ब्लैंक चेक पेपर लेना, उस पे उससे लिखवाना, कुछ भी लिखवाना, एनीथिंग। ठीक है, अगर उसकी राइटिंग हल्की सी, मतलब ज्यादा ही डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, तो वो हल्का सा डिप्रेस है, हम ऐसा कह सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसकी अपवर्ड जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो खुश है, क्योंकि दैट आर द, ऐसे होता है कि पर्सनालिटी आपकी हैंडराइटिंग में पूरी तरीके से समझ में आ जाती है। और अगर आप वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो उसकी राइटिंग में आपको इंक बॉल्ब का मतलब होता है, जब आप राइटिंग करते हैं ना, तो पेन को जब एक जगह रख देते हैं, आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो पेन रखा आपने, तो वो पेन से जब आप रखते हैं ना, तो उतनी जगह पे जहां वो पेन की निप होती है ना, वहां पे एक इंक का डॉट आ जाता है, जिसे इंक बॉल्ब कहते हैं। और हेजिटेशन आते हैं, कि आप सोचते जा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो वो बॉडी कोऑर्डिनेशन और सबकॉन्शियस माइंड का कोऑर्डिनेशन ना ठीक तरीके से बैठ नहीं पाता, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत आप अपनी राइटिंग में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली। मैं कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल आराम से आप पुरानी कोई भी राइटिंग उठा लीजिए। ठीक है, आपको पता करना है कि मुझे आपको ऐसे, तो आप देख लेना उस राइटिंग में, आप ऐसे ऑब्जर्व करना ये चीजें, तो आप पता चल जाएगा कि हाँ, ये सच में होता है।
Okay, sir. Next question is from Ashi. Yes. She is asking the scope of taking fingerprint and question document as a specialization in masters. What are the scopes? देखो, मैंने जो अपने मास्टर्स में फिंगरप्रिंट और क्यूडी दोनों कंबाइन था हमारे यहाँ, तो मुझे तो एक बेनिफिशियल रहा कि हाँ, वो मोस्टली मुझे जहां तक पता है कि एमएससी में जब स्पेशलाइजेशन करते हैं तो फिंगरप्रिंट और ये हैंडराइटिंग एक ही रहता है, ज्यादातर एक अलग सब्जेक्ट नहीं होता एक दूसरे से ज्यादा, क्योंकि वही कैरेक्टरिस्टिक आप ऐसे रहता है कि हाँ, कंपेयर मेनली दोनों का ये रहता है ना, दोनों सब्जेक्ट में कि आपको कंपैरिजन करना है चीजों का, तो दोनों। और अगर फिर स्कोप की बात की जाए तो आई थिंक टुडे मतलब आप साइबर में ज्यादा बेटर रहेगा कि आप फिर एमएससी में अगर आप स्कोप एज अ फ्यूचर देखना चाह रहे हैं कि हाँ मुझे एमएससी के बाद जॉब चाहिए, जॉब प्रेफरेंस है ना, पहला आपको फिर स्पेशलाइजेशन, या तो आप इंटरेस्टेड हैं किसी सब्जेक्ट में तो वो कीजिए, है ना। और अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे यार जॉब चाहिए एमएससी के बाद, तो आई थिंक आई सजेस्ट कि आप साइबर में स्पेशलाइजेशन करें, क्योंकि वो एक ऐसे धीरे धीरे इतना वाइड स्कोप होता जा रहा है ना कि आप बहुत जल्दी ही एमएससी पास आउट करेंगे और आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। सो यही रहता है कि अगर आपको देखो स्पेशलाइजेशन का सीधी ये रहता है कि या तो आप इंटरेस्टेड हैं किसी चीज में इसीलिए उसमें और डीप नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप फिर ये सोच रहे हैं कि एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ स्कोप की फ्यूचर केस में ज्यादा अच्छा है, तो आई सजेस्ट कि आप फिर साइबर की साइड जाएं, क्योंकि अभी जो करंट डेट है, एज चल रही है ना डिजिटल एज, उसमें फिर आप फिर साइबर में बहुत अच्छा रहेगा। Okay, sir. यस। Next question from Asra. Sir, if we got any charred document, then how do we examine handwriting in that case? चार्ज डॉक्यूमेंट, Yes, sir, charred document. तो देखो बेसिकली अब चार डॉक्यूमेंट यार आर्सन और ये फायर वाले केसेस में मिलते हैं हमें, जब आर्सन ऐसे कि फायर ब्लास्ट हो गया या कहीं पे आग लग गई, तो अब उसके पहले जब चार डॉक्यूमेंट मिलता है तो आप उसको ऐसे डायरेक्टली ऐसे कि कंपेयर करने के लिए उठा के नहीं ला सकते जैसे आप इनको रख सकते हैं। तो उसका पहले जब चार डॉक्यूमेंट उठाया जाता है तो वो हल्का सा जला भी होता है, पूरा भी जला होता है, तो एक उसका प्रोसेस होता है, पहले उसको आप प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन के बाद उसको फिर स्टेलाइज करते हैं कि स्टेबल रहे वो, क्योंकि चार डॉक्यूमेंट बहुत हल्का सी हवा से भी टूट जाता है, तो उसको पहले प्रिजर्व किया जाता है एनी काइंड ऑफ ऐसे कि हल्का सा उसमें नरिशमेंट आ जाए, तो कोई ऐसा सॉल्यूशन डाल देते हैं, ज्यादातर आई थिंक सो एसीटोन डालते हैं जिससे उसमें नरिशमेंट आ जाए, ठीक है। उसके बाद उसको प्रिजर्व करते हैं कि आप फिर प्रिजर्वेशन के लिए दो ग्लास शीट का यूज करते हैं, प्लेन जो ट्रांसपेरेंट हो। तो पहले आप एक ग्लास शीट लेंगे, उसमें हल्का सा एक ऐसे कोई भी ग्लू लगाएंगे जिससे वो जो डॉक्यूमेंट है ना, अब नरिशमेंट आ गई तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है चार डॉक्यूमेंट की, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप एक ग्लास लेंगे, ग्लास के ऊपर हल्का सा कोई भी ऐसा ग्लू लगाते हैं ट्रांसपेरेंट रहे जो, और ज्यादा ऐसे भी नहीं कि बहुत हार्ड हो, तो हल्का से एक ऐसे लगाते हैं कि हाँ वो वहां पे स्टेबल रहे। फिर उसके ऊपर से आराम से आप दूसरा वाला ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास लगते हैं, तो ये हो जाता है कि हाँ आपका प्रिजर्वेशन हो गया, आप कंपैरिजन के लिए आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया कि देखो जब रियली हम केस करते हैं ना, तो मैं भी अगर कोई केस करता हूँ हैंडराइटिंग मैचिंग का या कुछ भी, या कोई भी तो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाते, या तो वो किसी एफएसएल को भेजे जाते हैं, और एफएसएल को भी बहुत ऐसे भेजे जाते हैं कि ट्रस्टवर्दी हो कि हाँ जाने आने का बहुत, क्योंकि एविडेंस इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, ठीक है। तो उन चीजों का प्रिजर्वेशन बहुत वो होता है। फिर उसके बाद जब मैं अपना बताऊं तो ज्यादातर मुझे केसेस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, हमें उनकी फोटोज लेनी पड़ती है, ठीक है। उन फोटोज को फिर ऐसे जूम करके और एक जस्ट्रा चार्ट, अगर आपने सुना हो, ऐसे कि
एक साइड आप स्टैंडर्ड को रखते हैं और एक साइड रखते हैं आप सैंपल को। तो वो वैसे ही हम मतलब एक दो विंडो रहती हैं, तो एक साइड में आप उसकी फोटोज और दूसरी साइड में सैंपल की फोटोज को जूम करके ऐसे एनालाइज करते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ। The next question is from Harshita. हम्म। Does UV or IR examination reveal alteration and erasure, sir? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि आईआर और यूवी लाइट का यूज हम करते हैं। ये तब करते हैं मतलब बेसिकली तो वी हैव यूज द की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से काम चल जाए, माइक्रोस्कोप और एनी लेंस का मतलब एक फिजिकली, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की मतलब एविडेंस को आप ये समझ लीजिए कि उसको ऐसे किसी भी टाइप का ऐसा हार्म करना या किसी आप वो इंटेंशनली करें अनइंटेंशनली करें, एविडेंस को हार्म करना सबसे बड़ा ये समझ लीजिए कि जुर्म हो गया है मान। तो हम उसको कोशिश करते हैं कि ऐसे फिजिकली एनालिसिस करके कोशिश करें, फिर अगर वो नहीं होता है तो एडवांस टूल और टेक्निक्स का यूज करते हैं। अब एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी यूज करते हैं, बायोमेट्रिक टूल्स का भी, यूवी, आईआर और फॉरेंसिक केमिस्ट्री। तो इनमें ऐसा रहता है कि जो चांसेस ऑफ द हार्मनेस ऑफ एविडेंस वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो धीरे धीरे हम कोशिश उस स्टेप से करते हैं ना कि हल्के हल्के से चांसेस बढ़े, ना कि बिल्कुल एकदम से कि एकदम से आप IRUV का पहुंच जाए। पर हाँ, क्यों रहता है मैं एक बेसिक बता दे रहा हूँ बहुत अच्छा यूवी और आईआर का। क्या रहता है कि जब आप राइटिंग करते हैं, ठीक है, अब वो हो गया, एक बेसिक पैटर्न होता है किसी डॉक्यूमेंट को एनालिसिस करने का। पहले आप उस सबसे पहले जब आप चेक करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को कि वो फॉर्ज है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम मतलब तीन चीजों पे फोकस करते हैं। एक पेपर डॉक्यूमेंट का, दूसरा उसकी इंक मतलब जिसका यूज हुआ है इस पेपर में, ठीक है, और थर्ड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स, राइटिंग हो या सिग्नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हैं कि हाँ इससे अगर कुछ बात बन जाए, ठीक है, अगर वो बात नहीं बनती है तो फिर हम पेपर के टेक्सचर के करते हैं कि हाँ ये पेपर जेन्युइन है कि क्या कैसा, थोड़ा सा वो एक अज्यूम करने की कोशिश करते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं होता ना तो फिर हम इंक का यूज करते हैं, और इंक का एनालिसिस करने के लिए फिर हम यूवी, आईआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी और केमिस्ट्री, इतने एसीटोन का यूज करते हैं, FTIR का यूज करते हैं, मतलब इतने सारे टेक्निक्स हैं। तो यूवी और आईआर कैसे, मैं एक प्रिंसिपल बता दे रहा हूँ, बेसिक फंक्शन उनका क्या होता है कि इंक बहुत सारे आप समझ लीजिए कि चार कंपोनेंट से बन के बना होता है कि सॉल्वेंट से बना होता है, ठीक है, और पिगमेंट होते हैं उसमें, ठीक, और एक बेस होता है, ठीक है, बाइंडर्स होते हैं। तो ये जब इनका जब हम यूवी और आईआर के अंदर रखते हैं ना, तो ये सारे कंपाउंड है ना एक अलग वेवलेंथ की एक रेंज को रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को एक, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम ये समझ लो ना कि एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाह रहे हैं उसको, तो आप वही वाला बेसिक फॉर्मेशन होता है कि वो जो एटम्स हैं उस इंक के अंदर, इंक फॉर्म उसके सॉल्वेंट के एटम्स हैं, वो लाइट को जब यूवी और आईआर डालते हैं ना तो हल्का सा ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जब वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं ना तो उसकी वेवलेंथ एक अलग हो जाती है, ठीक है। तो जब हम ऐसे चेक करते हैं कि आपने राइटिंग किसी और पेन से लिखी है लेकिन जो साइन है ना वो किसी और पेन से है, तो ऐसे हम उस चीजों का ऐसे कि हाँ ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, अगर राइटिंग किसी दूसरे पेन से है और सिग्नेचर किसी दूसरे पेन से है, तो हम फिर उसका इंक का एनालिसिस करते हैं कि ये इस रेंज की लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है UV IR में, है ना, और ये वाली राइटिंग इस रेंज की लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हम उनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग चीजें हो जाएं, तो हमें आसानी हो जाती है कि हाँ ये फॉर्ज है और नहीं है। Okay. इज दैट ओके? Yes, sir, it is okay. हाँ। Sir, can you please share your presentation file for us for future references or resource? अच्छा, मुझे फाइल शेयर करनी है क्या प्रेजेंटेशन की?
Yes, you can share with one of Okay. the team members. Yeah. In the session or on another WhatsApp like मुझे WhatsApp पे भेजनी है. Okay, WhatsApp पे you can share with us. Okay. So, Then ending of question areas. Thank you once again, sir. welcome. Thank Information. you so much. Now, I would like to share this podium with Paridhi. Over to you, Paridhi. Good afternoon, everyone. Myself, Paridhi. I extend our sincere gratitude to each of you for honoring us with your presence at this remarkable occasion. Today, we had the distinct privilege of hosting Mr. Vivek Sir as our guest. Your extensive expertise, captivating presentation, and insightful feedback have been immensely valuable to all participants. Your presence has greatly enhanced the quality of our event, and we are deeply appreciate the knowledge you have shared with us. Once again, thank you, sir. On behalf of NSFS, here is a small token of appreciation for you. Thank you once again to everyone for being here today. Your active participation has been the cornerstone of this event's success. A special commendation goes to our diligent team admins and team members who is behind the scenes efforts have ensured the smooth and seamless execution of this program. Before we conclude, we would be honored to hear a few words of feedback from our guest, Mr. Vivek Kurmi, sir. Uh, I don't have any kind of speech today, but in future perspective, I give you advice कि अगर आप फोरेंसिक में आना चाह रहे हैं ना तो एमएससी में, खासतौर पे मैं एमएससी के लिए कह रहा हूँ कि अगर बीएससी करने के बाद आप जैसे तैसे निकाल के, अभी तो बीएससी का मैं बताऊं आपको, मेरे साथ भी बहुत ऐसा था कि नहीं नहीं बीएससी भी मैंने फॉरेंसिक का मुझे पता नहीं था एडमिशन ये एक दिन पहले कि फॉरेंसिक होता क्या है, बाय चांस मैंने फॉरेंसिक में आया था। लेकिन बीएससी के बाद आप ना इतना समझ जाते हैं कि हाँ आप बीएससी ये फॉरेंसिक में आ सकते हैं और नहीं। ठीक है, तो अगर आप एमएससी करना परस्यू करना चाह रहे हैं ना और फॉरेंसिक में करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत हार्श रियलिटी बता रहा हूँ इंडिया की कि दरअसल बहुत ऐसे अभी तो मैं अभी स्टिल डेट की बात कर रहा हूँ कि हाँ प्रेजेंट डेट की, तो बहुत कम स्कोप है फॉरेंसिक में अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखा जाए आप। ठीक है, तो इफ यू हैव टू परस्यू नाउ एमएससी, प्लीज कि हाँ आप मतलब बहुत सोच समझ के आए। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप जब भी मतलब ऐसे जब भी कोई आपको डाउट हो या कुछ भी, तो यू कैन आस्क मी on my you can message me, you can on LinkedIn or WhatsApp. I will really happy to help you. Thank you. Thank you, sir. We express our deepest appreciation for your enriching presence. Your impact will resonate with us long after this event. We look forward to the possibility of welcoming you again in the future. Now I will hand over the podium to Sakshi. Over to you, Sakshi. Good afternoon, everyone. Myself, Sakshi Barpete. I would like to thank you all for joining us today. I am thrilled to share an amazing opportunity with you, a chance to become a part of our community, NSFS. NSFS has diverse community that value every member's unique contributions. We are not limited to a single area of interest. Instead, we celebrate a broad range of passion and talents among your member and audience. I encourage each of you to take a step into a community that defends convention, ones that embrace diversity, teamwork, and the drive of excellence. Join NSFS now, where your unique skill and perspective will help in advancing the field of forensic science. You can find the link of connect with us on WhatsApp, Instagram, and LinkedIn below. Thank you.
Thank you everyone for joining us. Now you can leave the meeting. At last, thank you so much, Yash, and all the members, respected advisory member, and all the participants for listening me and give me a chance to interact with all of you. So it's a humble thank you for everything. I would be appreciate or love to work with you. Thank you so much. Thank you so much, sir, for joining us.